So the first sentence is, जब मैं स्कूल गया तब बारिश हो रही थी. When I was go to When school, I went to go to the school, It it was is it raining. was raining. It was raining when I went to school. When I went to school, it was raining. When I went to school, it was raining. Okay. जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खाता हूं. When I feel hungry, I eat food. I eat food when I feel hungry. Okay. जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेला करता था. When I was young, when I was young, When I I was was young, young, I used to play I used to cricket. play cricket. When I was young, I used to play cricket. When I was young, I used to play cricket. जब तुम आओगे मैं रेडी हो जाऊंगा. When will whenever you come, You and whenever you come, I will ready. Become Whenever ready हो जाएगा सर ना यहाँ पे. I will be ready. as long as I will become ready. देखते हैं सबको बोलने. Yeah, When you come, I will be ready. देखो जब तुम आओगे, when you come, मैं रेडी हो जाऊंगा. अब आई विल के बाद गेट रेडी, तो गेट ज्यादा अच्छा ना. आई विल गेट रेडी तुरंत हो जाएगा ना. yes sir. आओगे तब मैं रेडी होऊंगा, तो आई विल गेट रेडी. व्हेन यू कम आई विल गेट रेडी. बिकम इसलिए नहीं आएगा कि बिकम में टाइम लगता है, प्रोसेस है. धीरे धीरे कुछ होकर के लास्ट में कोई बिकम एकदम बन गया जो बनना था. जब मैं टीवी देख रहा था मेरा फोन बजा. जब मैं टीवी When देख When रहा I था, was watching TV, my TV, phone rang. When I watched TV, my phone was rang. When When I I was watched watching TV, my phone rang. my phone rang. when I was watching TV, that time my phone was rang. No, My phone rang. अब उन्होंने वाज रैंक बोला है तो कुछ तो सोच के बोला होगा. When I was watching TV, my phone rang. ऐसा क्या? ओके. जब टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं. When the teacher teaches, the students carefully listen. When teachers teach, students pay attention. When when teacher teacher teaches, students pay attention. when teacher teach टीचर्स, Then अगर एक student- टीचर है तो फिर टीचर्स होगा. नहीं सर, टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे टीचर्स की तो बात व्हेन है. टीचर्स टीच. When teachers teach, Student pay attention. student pay attention carefully. फिर स्टूडेंट भी एक से ज्यादा होगा तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन. अब यहां पर हमने ना तो टीचर्स में द लगाया न स्टूडेंट्स में द लगाया. कारण क्या था? प्लूरल था. Common. Common ये कॉमन था सर, जनरली बोलते हैं वैसे. जी.
जब वो आएगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। When she comes, I When will. she come, I will teach. When she will come, I will teach her. Her. Teach her. ओके। जब वो शोर मचाती है मुझे गुस्सा आता है। When she makes When she start noisy, When she makes I noise, got मुझे गुस्सा आता है। I feel got I angry. get angry. आई गेट एंग्री। I get angry when When she shouts. makes a lot of noise, I feel angry, annoyed. जब तुम मेरे साथ होती हो मुझे खुशी मिलती है। When you are When with you me, I come feel with so me, happy. Good evening, sir. when you come with me, Good evening. I feel happy. नहीं, when you are with me होगा ना. When you are with me, When you are with I me, feel happy. Yeah, I it will makes get me happy. I feel happy. When you are with me, I feel happy. Yes sir, इसको it makes me happy भी बोल सकते आई हैं। फील हैप्पी। जब मैं वेकेशन पर था, छुट्टी पर था, मैं खुश था। When I was ऑन वेकेशन। on vacation, I was happy. When I was on vacation, I was happy. जब वो थक जाती है कॉफी पीती है। When she get tired, When she get take tired. पीती है। She takes coffee. When she get tired, Gets tired. When she gets tired, she drinks coffee. She takes coffee. हाँ, she takes coffee. जब बारिश होती है सड़क गीली हो जाती है। When it is raining, it's rain. When it rain, road get wet, sir. When it rains, the road gets wet. The road gets wet. हाँ, अगर रोड को भी प्लूरल में कर दे, रोड्स कर दे तो फिर get wet होगा. wet होगा ना। When it rains, the roads get wet. ठीक है। जब मैं मार्केट गया सब कुछ बंद था। When I went to market, everything Everything is closed. Everything was closed. closed. When I went to the market, everything was closed. तो बताइए कि क्लोज या क्लोज्ड। Closed, sir. Sir, closed. क्यों क्लोज क्यों नहीं? सर क्योंकि वो बंद था, सारी दुकानें बंद थी। पहले से बंद थी। अच्छा, चलो दुकानें खुली थी अब। The shop is open. Closed as a adjective है ना। तो फिर खुली का क्या करें? सर मतलब Open. Passive, sir. The shops was open. आकांक्षा कह रही मतलब अरे दुकानें खुली थी बुड़बक, दुकानें खुली थी। समझ गई। हाँ। कैसे होगा? The shop was open. ओपन या ओपनड? Opened. नहीं, ओपन। सर ओपन में तो ऑलरेडी ओपन में सब कुछ चीज होता है, तो ओपन लगता ही नहीं है ना। हाँ, क्लोज में ईडी लगा दो, क्लोज्ड। बट ओपन में ईडी की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपन अपने आप में खुद भी एडजेक्टिव होता है। यस सर। तो ये फायदा है।
चलिए, जब बिजली चली जाती है मैं मोमबत्ती जलाती हूं। When the light has gone, मैं बत्ती जलाती हूँ. I open the switch. When the नहीं, मोमबत्ती electricity जलाती हूँ, cut मोमबत्ती the जलाती हूँ. electricity. When the when electricity When the electricity goes out, I I light blow a the candle. candle. I light the candle होगा. When the When electricity power went went out, out, I lit the candle. I light the candle. जब बिजली चली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Yes, sir. When current, when the When electricity electricity goes off, when the goes electricity out, goes off, I lit the candle. मैं कैंडल जलाती हूँ। I light the candle, sir. आई लाइट द कैंडल। सर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है इसके सर लिए एक क्या कंफ्यूजन हो गया, आई लाइट अ कैंडल होगा या आई लाइट द कैंडल होगा? अ कैंडल, कोई भी एक अ कैंडल। कैंडल ना। हाँ, द तब होगा जब एक ऐसा कैंडल घर में रखा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, जब मर्जी उसी को जला दो, होता है ना। यस सर। होगा कोई बहुत बड़ा सा नहीं होता है कोई कैंडल, तो फिर द बोल दो। द तभी बोलो जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि उसी कैंडल की बात हो रही, तब द ही लगेगा। ओके सर। सर बिजली चली जाती इसको कैसे बोला जाएगा? देखो, बिजली को मान लो पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो कहना है कहो। हाँ, जाने को हम गोज आउट कहते हैं। गोज आउट होगा ना। हाँ, चली जाती है गोज आउट, चली गई वेंट आउट, चली गई है हैज गॉन आउट। when current goes off, आई light a candle. कैंडल। जैसे कई लोग लिट कह रहे थे, तो सेकेंड फॉर्म होता है ना लिट, तो हाँ हाँ हाँ। हमें तो सर इग्नाइट बोल सकते हैं इधर लाइट की जगह? इग्नाइट ठीक है। इग्नाइट में क्या होता है कि बस थोड़ा सा सुलगा देना। ओ अच्छा अच्छा, चिंगारी जैसा लगा देना ऐसा ही। गोज ऑफ नहीं बोल सकते सर, तो फिर जो सर चली गई है में गोज आउट आएगा, चली गई में हैज गॉन आएगा। हाँ चली द गई। पावर हैज गॉन। अब रही बात की जैसे उन्होंने कहा गोज ऑफ कह सकते हैं कि नहीं, जो ओ डबल एफ ऑफ कुछ लोग कहते हैं, बट जो गो ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है अलार्म का बजना, कहीं पर बम फट जाना, इन सब में गो ऑफ का इस्तेमाल होता है। और बिजली का स्विच देने के लिए टर्न ऑन टर्न ऑफ ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, स्विच किधर देने के लिए? मतलब स्विच ऑन करने के लिए बोलते हैं टर्न ऑन द स्विच, राइट सर? हाँ जी, जला दो, बिजली जला दो। हाँ, बिजली करंट मतलब जलाने के लिए। और पूरा बिजली चली गई तब मुझे बोलना है गोज आउट, राइट सर? हाँ जी, हाँ। ओके। जैसे मान लो अभी अचानक लाइट चली गई, ओ लाइट हैज गॉन करंट आउट, लाइट हैज गॉन आउट। सर कट आउट बोल सकते हैं। कट आउट ठीक है, कुछ लोग कह देते हैं पावर कट, ये सब, बट सही मायनों में तो गो आउट ही है। ओके सर। तो चलिए, सब सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको गोज आउट बोलेंगे हम लोग। सिंगुलर है जी जी। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट। चली जाती है। जब मैं ऊँघने लगता हूँ, ऊँघना समझते हैं? नो सर। जैसे हल्की हल्की नींद आने लगती है। देखो, उत्तराखंड तक लोग समझ गए, नैप सर, नैप। और महाराष्ट्र में लोग समझ ही नहीं रहे ऊँघना है। सर ये ड्राउजी होगा क्या? सर महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनको जब नींद आने लगती है और एकदम नींद में होते, उस वक्त कौन सा शब्द हिंदी का बोलते हैं या मराठी का? जैसे आपका बच्चा है एकदम नींद में बेचारा झूल रहा है, ले जाओ इसको कोई सुलाओ यार, बहुत नींद आ रही। झुलायला लागला सर असं बोलतात। When I feel sleepy. ओके, तो मुझे लगता है ऊँघना तो शायद हिंदी वर्ड ही है, ऊँघना, ऊँघ रहा सर है, हमारे यहाँ भी बोलते हैं ऊँघना। ऊँघना। मराठी में सर उसको बोलते हैं डुलक्या, डुलक्या, डुलक्या ले रहा है। डुलकिया ले रहा है, यस सर, डुलक्या बोलते हैं। डुलकिया। ओके, तो ऊँघने की अंग्रेजी फिर क्या होगी? ऊँघने की
प्रियंका क्या होगी? सही तो सोचा था, ड्राउजी, फीलिंग ड्राउजी क्या है? तो बनाइए कि जब मुझे नैप नहीं नहीं, नैप घूमना नहीं है। तो जब मुझे लॉर्ड नैप ऑफ तो हल्का सा लॉर्ड आराम ऑफ करना होता है ना सर, 1 घंटा अगर कर लिया। लॉर्ड ऑफ नहीं मतलब सर जो बोल रहे हैं बंगाली में शायद इसको झिमुनी बोलते हैं। झिगुनी। झिमुनी मतलब वो बैठ बैठ के ऐसे मतलब सार हिला रहे थे, ऐसे ही कोई नींद के बारे में बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, नींद है झिमुनी। ओ अच्छा, उसका इंग्लिश नैप नहीं होगा, ड्रॉजिंग। वो प्रियंका सही बोले थे, मुझे लगा मतलब छोटा सा नींद लेते हैं ना नैप, उसको बोल रहे हैं शायद। ठीक है ठीक है। तो जब मुझे नींद आती है तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। When I feel drowsy, I turn off the आई टर्न ऑफ द टीवी सर। turn off the TV। ठीक है। जब ट्रेन आई, लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, पहले बैठे हुए थे, खड़े हो गए। When the train arrived, people get up Stood up, on the platform. Got up. stood up भी हो Stood सकता है, up. खड़े हो गए। Okay. Stood up. When the train arrived, the people stood up. Right, sir? हाँ, when the train arrived the people stood up। जब भी बारिश होती है मैं घर पे ही रहता हूँ। Whenever rain, whenever rain comes, whenever rain comes, I stay at home. Whenever it is rain I stay at home। whenever it rains Whenever it rains, sorry। whenever it rains, I stay at home. सर हम I stay at home पहले बोलें तो चलेगा? I stay at home whenever it rains. चलेगा चलेगा। Okay, sir. रेन का सेंटेंस आ जाए तो मैं पहले इसको पहले बोल दूंगी। ऐसा ही हो जाता है सर। टांग स्लिप होता है मतलब बहुत। टांग? तो चप्पल पहनो, है ना सर? टांग स्लिप हो जाता है। तो उसका क्या सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा सर? टंग होगा, जीव है टंग। टंग टंग को लड़की टांग कहती है, हैं? मतलब इधर एनजी का वो निष्कार जैसा होता है ना बंगाली में, वैसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसीलिए मैं भी करती हूँ। टंग होगा ना सर? टंग होगा। अंग्रेजी तो अच्छा बोलो। हाँ, टंग। ओके चलिए बनाइए। जब तक डिनर रेडी नहीं होता तुम टीवी देख सकते हो। Until the dinner doesn't ready, do not ready, you can see the TV. You can keep watching movie until the dinner gets ready sir। as long as यानी कि तुम टीवी देख सकते हो जब तक डिनर रेडी नहीं होता। यानी कि इसमें अंटिल तो आना चाहिए ना, जब तक। यू कैन वॉच टीवी अंटिल डिनर इज रेडी। हाँ सर। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है मैं ऑफिस से बाहर नहीं निकलता हूँ। Until my work complete,
I do not come out the office. The office work is not completed until I will. सर until के साथ में I will भी नहीं आता, not भी नहीं आता. Until I go to outside. I don't leave the office until the work is finished. सही पकड़े। बताइए अनु जी, फिनिश्ड क्यों आया होगा? सर पास्ट में है, नहीं हो जाता, ये कंडीशनल हो गया सर। इस ऐसा करके क्या? सर ये ऐसा हो गया ना, एक काम के बाद दूसरा काम हो, कि जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक नहीं जाऊंगा. It's showing adjective. सर बताएं प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा, ये तो क्लियर नहीं हुआ हमें। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक मतलब अंटिल, यहां तक तो क्लियर है। यस सर। काम मतलब द वर्क, अब खत्म हो जाता, अब इसको क्या करें? finished, तो फिनिश्ड एडजेक्टिव होता है, फिनिश्ड मतलब डन, वर्क डन वाली फीलिंग देता है ना फिनिश। सर कंप्लीट नहीं बोल सकते? हाँ तो कंप्लीट कह दीजिए, अंटिल द वर्क इज कंप्लीट। मैंने कंप्लीट ही यूज किया था। कंप्लीट बोल दीजिए, वेरी गुड। कंप्लीट अपने आप में पूरा दिखाता है, उसको B3 भी करने की जरूरत नहीं है। यस, अंटिल माय वर्क कंप्लीट आई डू नॉट कम आउट द ऑफिस। फिर वर्क, फिर कंप्लीट, फिर इज कंप्लीट करना पड़ेगा, अंटिल माय वर्क इज कंप्लीट, ये होगा। अगर खाली कंप्लीट बोलेंगे तो फिर कंप्लीट्स करना पड़ेगा, कंप्लीट को अगर वर्ब बनाए तो अंटिल माय वर्क कंप्लीट्स। और माय उसको वर्क नाउन हो गया सर, सब्जेक्ट में ले लिया हमने। और एक और तरीका है, अगर आप गेट लगा दें तो कंप्लीट का फिर कंप्लीटेड भी कर सकते, अंटिल माय वर्क गेट्स गेट कंप्लीट, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एडजेक्टिव बन जाएगा। गेट के साथ सर थर्ड फॉर्म आती है ना, एडजेक्टिव। हाँ एडजेक्टिव। जब तक बस नहीं आती यहीं रुको। until the bus comes, please stay here. Until the bus comes. Until the bus arrived, you stay here. Arrive. Stay here until the bus comes. Until the bus comes, you stay here. मैं लाइब्रेरी में ठहरा, रुका रहा जब तक मुझे किताब नहीं मिली। Until I didn't got the book. I didn't get the book. अंटिल में डिडंट Until- नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। Yes sir, get लगाना था। Until I find the book, I- I stay the library. Until I find the book. until I got the book, I stayed in the library. Until के सेकेंड सेंटेंस में लगा सकते सर नॉट? सेकंड में लगा सकते हैं, बट इसमें, इस वाले में कहीं नॉट तो था ही नहीं ना। मैं लाइब्रेरी में रहा जब तक किताब नहीं मिला, तो इस नहीं का तो कुछ करना ही नहीं है ना। Yes sir. नहीं सर ऐसे ही पूछ रहे। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, I stayed in the library until I got the book. जी सही बोल सकते हैं। जब तक अंधेरा नहीं हो गया मेरा बच्चा खेलता रहा। Until get dark. My child was playing My- until it got dark. child kept playing.
ठीक। My child kept playing until it got dark. डर। Yes. हम्म, सर अंधेरे होने के लिए इट यूज करेंगे और रेन के लिए जी जी यूज इट लगाएं। करेंगे। और सर टाइम के लिए वो लगता है ना, इट इज। हम्म, हाँ, जब तक तुम सीखते रहोगे मैं सिखाता रहूंगा। As long as you learn, हम्म, As long as you learn English, I will teach you. I will teach you. I keep teaching as long as you learn. I will keep teaching you as long as you keep learning. सब As सही। long as you हाँ want. हाँ हाँ, वो उधर भी कीप लर्निंग होगा। सही उधर सही। भी keep लगेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो सीखता रहा ना, वो हिंदी ऐसा था कुछ। ओके। जब तक मुझ में एनर्जी है मैं बोलता रहूंगा। As long as I have energy, I keep on saying. I keep on आई विल Speaking. कीप ऑन स्पीकिंग। I keep on speaking. As long as I have energy. Yes. As long as As long as I have As long energy, as I have I energy, keep I on will speaking. keep speaking. I keep on I speaking. keep on speaking. जब तक बैटरी चार्ज है तब तक फोन यूज करो भाई। As long as the battery is charged. As long as the Keep battery is using the charged, phone. I will using phone. Use the phone. Keep using the phone I keep as using long the phone. as the battery is full. Use Sir. the phone as long as the battery is charged. Yes. नहीं मतलब हाँ शायद Use the phone. use Yeah. the Use phone the as phone. long as the battery is charged. As long as battery is charged. Use can the use- phone. Please use the phone. You can use phone. You can use phone. As long as battery is charged, you can use phone. मतलब जब तक सर चार्ज रहेगी ना। हम्म, ओ, हाँ सही है। जब तक बाहर उजाला है। सर उसको until से भी बना सकते हैं क्या? फिर अंटिल में ऐसा करना पड़ेगा कि जब तक डिस्चार्ज ना हो जाए, है ना? मतलब the battery runs out ना? हाँ ऐसा करना पड़ेगा। जब तक बाहर रोशनी है उजाला है तब तक खेल लो। As long as the sun उजाला है क्या मैंने? मतलब जब तक डे लाइट है तब तक खेल लो। As long as it is sunlight outside, you can play. खेलने को सर प्ले से बोलना है ना, प्रेजेंट इंडिफिनाइट ना। हाँ, प्ले आउटसाइड एज लॉन्ग एज सर ये तो normal डजंट play as long as it is daylight. इट इज डे लाइट। हाँ इट सर इज इम्पेरेटिव नहीं बनेगा ना सेकंड वाला? सर एज लॉन्ग एज के साथ नेगेटिव लग सकता है ना। लगता है, वो भी लगता है, बट अगर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो आपको अंटिल जैसी फीलिंग आ जाएगी। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर पॉजिटिव में ही बोलना होगा। एंड एज लॉन्ग एज इट इज सनलाइट। और ब्राइट बोले तो सर play as long as इट इज ब्राइट आउटसाइड। हाँ it is bright outside. ठीक है, तो फिर सर सनलाइट बोलेंगे तो फिर देयर इज बोलना पड़ेगा। देयर इज सनलाइट राइट। यस सर।
sunlight, sunshine. There is Yes, sir. light, daylight. Hmm. So guys, ये मैंने आपसे पूछा